Recording in progress. ये करना मिनिमाइज। चलो जी, आज हमने सर्कुलर मेजर करना है। सर्कुलर मेजर बेसिकली वही है जो आपने पहले भी ओलवल्स में करते आए हो। आपके सर्कुलर मेजर में कुछ चीजें हैं जो रिपीट हो रही हैं, उनको रिपीट वाली चीजों को पहले देख लेते हैं, विच इज द यूज ऑफ साइन रूल। ठीक है, साइन रूल कैसे यूज करते थे? इन एनी ट्राइंगल, अगर आपके पास ट्राइंगल, भाई हेलो, हेलो फैज, अस्सलाम वालेकुम। फैज आवाज आ रही है? फैज आवाज आ रही है? अब भाई ये ऊपर क्यों नहीं जाता? फैज आवाज आ रही है? अच्छा, अगर आपके पास रेशो है बिटवीन द साइड एंड द ऑपोजिट एंगल एंड यू कैन मेक टू ऑफ दीज, तो आप साइन रूल यूज करते हैं, विच मीन्स ऑब्वियसली आपके पास सारी वैल्यूज तो नहीं पता होनी चाहिए। इफ यू नो थ्री ऑफ देम, तो यू कैन यूज साइन रूल टू फिगर आउट द मिसिंग वैल्यू। ठीक है, देन देयर विल यूज टू बी अ कोसाइन रूल। कोसाइन रूल is again used when you have one possible pair that you can make in the equation, and obviously the this pair entirely इनमें से या तो एक चीज मिसिंग हो सकती है या फिर दोनों ही नोन भी हो सकती हैं, दैट डज नॉट मेक अ डिफरेंस, बट इधर वे द कोसाइन रूल कैन ओनली बी यूज्ड अगर आप एक ही पॉसिबल पेयर बना सकते हो, डज नॉट मैटर कि उनमें से एक नोन है या अननोन है। ठीक है, सो द कोसाइन रूल इज, ऑल ऑफ दीज आर गिवन इन योर पेपर बाय द वे। तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर minus 2ab and cos c. So in this angle is going to be c and this side is going to be c as well. So आपकी basically side and the angle must be the opposite pairs of each other. Faiz, are you there? Gotcha. Then in your again IGCSE O levels, no Faiz, we can't hear you. Faiz, I think you are muted by the way. Yes, Faiz, you are muted. Unmute yourself. लाइबा, मेरी आवाज आ रही है आपको बेटा? लाइबा कुछ बोलो। Faiz, I can't hear you. I don't know for some reason. Yes, I know. Your mic is unmuted. I have no idea why. लाइव अगर आपके पास फ्री टाइम हो तो थोड़ा सा कुछ बोलिएगा। आई जस्ट वांट टू चेक के क्या सीन। अच्छा, उसके बाद आपने ओलवेज में पढ़ा था द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। इफ यू रिमेंबर, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल जो है व्हेन इट्स अ राइट एंगल ट्राइंगल, तो इट इज वेरी सिंपल। इट इज गोइंग टू बी 1/2 बेस इनटू हाइट। ठीक है, दिस इज द बेसिक फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। द अदर फॉर्मूला आपका जो था, दैट इज एप्लीकेबल to a non-right angle triangle, and the formula suggests 1/2
ए बी का प्रोडक्ट एंड साइन सी, ठीक है। दिस सिंपली मीन्स द प्रोडक्ट, this simply means the product of two adjacent sides and then the angle between them, ठीक है। This is as simple as that. One side is A, the other side is B. The angle between is C. Actually. So this is something that you will be using from like the past information of your previous grades, O levels, IGCSE. उसमें सारी चीजें आप पढ़ के आए हैं जो आप यहाँ पर दोबारा यूज करेंगे. Apart from this, you will have to use Pythagoras theorem, obviously, but I'm still going to write it. C square equals to A square plus B square. ठीक है? This is C, this is A, this is B. So C square is equals to A square plus B square is still going to be used. Second, the isosceles triangles. What is an isosceles triangle? A triangle that has two sides same and hence the angles in the triangle, the two angles which the sides are making will also be the same. This is what we call an isosceles triangle. What is an equilateral triangle? Equilateral triangle. In an equilateral triangle, all the sides are exactly the same. शाज़ेब टेस्ट दिया आपने? शाज़ेब ने टेस्ट दिया था आपने? दोनों ने टेस्ट दिया? अच्छा. So in a scale, in an equilateral triangle, all the sides are exactly the same and all the angles are 60 degrees. I'm not going to say they are same because they are 60 degrees. Okay? And this is an off chance rule. Let's say you have an isosceles triangle. Let's say you have an isosceles triangle. Okay? And one of the angles in the isosceles triangle turns out to be 60. This entire triangle will automatically become an equilateral triangle. ठीक है, क्योंकि अगर ये 60 है तो आपके नीचे वाले दोनों एंगल्स भी 60 हो जाएंगे. सो इन आइसोसेलेस triangle, if one angle is 60, triangle becomes equilateral. ठीक है. This is again, this is not a proper property, but this is something we have seen over the years और ये वहीं से बनता है. Now let's get into the actual circular measure वाला chapter. The first thing that you need to know is arc length. लाइबा arc length याद है बच्चों? Guys, can you hear me properly? Shazib, can you hear me properly? No, that's fine. I was just asking you, like, can you hear me or not? Acha. So if you remember, तो arc length में क्या होता था? Arc length is a smaller section is the smaller section of an entire circumference. ठीक है? This is what we call an arc length. ठीक है? But unfortunately,
द फॉर्मूलाज दैट यू हैव स्टडीड इन योर आईजीसीएसई और ओ लेवल्स अब वो यूज नहीं हो सकते, ठीक है। आर्क लेंथ ऑलवेज यूज टू बी मॉनिटर्ड बाय द थीटा इन बिटवीन, ठीक है। बट अब दिस थीटा हैज टू बी इन रेडियंस। तो आप ये समझ लें कि जब भी आप सर्कुलर मेजर का क्वेश्चन सॉल्व करने लगे हैं, कन्वर्ट योर कैलकुलेटर इनटू रेडियन मोड। आप थीटा मोड में कैलकुलेशन कर ही नहीं सकते, इवन दो सिंपल मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन डज नॉट गेट अफेक्टेड, बट साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, एवरीथिंग एल्स विल बी अफेक्टेड बाय दिस। तो आप अपने कैलकुलेटर को रेडियंस में कन्वर्ट कर लेंगे, एंड समटाइम्स दे माइट गिव यू फ्यू वैल्यूज जो आर ऑलरेडी डिग्रीज में है, एंड यू नीड टू कन्वर्ट देम इनटू रेडियंस। तो बेसिक कन्वर्जन ऑफ अ रेडियन इज 1 रेडियन, sorry, 1 पाई इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, ठीक है। पाई is in radians and theta is in degrees, ठीक है। Basis on that, we have converted few values before. If you can memorize them, it would be very effective. If you cannot, that is perfectly fine. So 30 is pi by 6, 60 is pi by 3, 45 is pi by 4, and 90 is pi by 2. So these are few values. If you can memorize them, please do, because these are most the values which will be used in your circular measure if there is ever an off opportunity, ठीक है। Now coming back to the original formula for arc length, आपने जो O levels में formula पढ़ा था arc length का, वो क्या था? थीटा ओवर 360, थीटा ओवर 360 टाइम्स 2 पाई आर। यहां पर मैंने वो भी करना था, 360 इज लेबल्ड एज 2 पाई। अच्छा, सो दिस फॉर्मूला कांट बी यूज्ड एनीमोर, क्योंकि आपके पास अब जो एंगल है दैट इज नॉट इन डिग्रीज, इट हैज टू बी इन रेडियंस। सो कैन आई सब्स्टिट्यूट 2 पाई instead of 360? Hence this cancels out. Your formula for arc length, the new formula for arc length is r theta. The new formula for arc length is r theta, and please do not forget theta has to be in radians. अगर theta radians में नहीं है, तो whatever you do using this formula will always be considered as wrong. और आप ये भी नहीं कर सकते कि आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर लें जस्ट बिकॉज दोनों का आंसर सेम आना है। अगेन दिस इज एन अपॉर्चुनिटी व्हिच डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, आप ये भी नहीं कर सकते। So now the question goes like, if they ask you to find the arc length, this is what you do. If they ask you to find the perimeter, if they ask you to find the perimeter, perimeter का फॉर्मूला क्या होता है? Sum of all sides, ठीक है। There is no specific formula associated to the perimeter, and most of the times whenever they ask you about the perimeter, they will specifically use the word find the perimeter of this shape, ठीक है। दिस शेप का मतलब क्या होता है कि वट एवर इज ड्रॉन इन द क्वेश्चन ऑल द साइड्स आर एक्टिवली कंसिडर्ड, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहूं सिर्फ आर्क लेंथ निकालनी, यू डोंट नो इफ द साइड्स आर बीइंग कंसिडर्ड और नॉट, बिकॉज साइड्स में वो तो रेडियस भी हो सकती है, ठीक है, हो सकता है इमेजिनरी लाइंस हो। सो व्हेन दे से शेप, दैट मींस ऑल द साइड्स दैट यू कैन सी आर एक्टिवली कंसिडर्ड, ठीक है। सो इन दिस पर्टिकुलर केस आपके पास ये दोनों आर और आर है, तो फॉर दैट द पेरीमीटर विल बिकम आर थीटा, which is the arc length, obviously. And then the radii on the side, आपके पास दो रेडियस है जो टोटल शेप को कंप्लीट कर रहे हैं, so you will go like r theta plus 2r. If you want to further simplify this, you can take r common and you can go with theta plus 2. But that would be the most simplified version
for the perimeter formula if there can be any. ठीक है? Again, theta must be in radians. उसमें कोई और कुछ नहीं हो सकता. ठीक? अच्छा. Let's say they have given you a situation, and before we discuss that situation, segment versus sector. What is a segment? What is a sector? अच्छा. The one on the left hand side is a segment. The one on the right hand side is a sector. ठीक है? What is the differentiative between the both? In a sector, the entire feature slice, you can say, has to be shaded. Okay? This is a sector. What is a segment? The region that is bounded by a chord and arc length is considered as a segment. This is a very important difference that you need to know, because in your exams वो आपसे बार बार कहेंगे कि segment का फाइंड कर दें और आप एंड पे जो है वो सेक्टर का ढूंढ के बैठे होगे. So this shaded region on the left hand side is representing a segment. The one on the right hand side is representing a sector. Now there are two types of sector as well. One is the minor sector. The other one is a major sector. Similarly, one would be a minor segment. The other one would be a major segment. So in this particular example जो आपके सामने बनी हुई है, so this particular shape on the left hand side will be considered as the major segment. This entire thing is going to be considered as the major segment. And similarly, the Pac-Man game that we used to play is considered as the major segment. ठीक है? Now the only problem is कि पहले आपके पास, let's say अगर ये वाला एंगल होता था x, और आपसे मैं कहूं कि आपने मेजर सेक्टर का एंगल निकालना है, तो you could have easily done 360 minus the angle, and that will be the angle of the major sector. But now you can't use 360 क्योंकि अब सारे एंगल्स जो हैं वो हैं ही नहीं डिग्रीज, वो हैं ही रेडियन. So for that, if you want to find the angle of the major sector, you will be doing 2 pi minus x instead. Why are we doing 2 pi minus x? Because 2 pi is the representative for 360 degrees. Okay? And in segment, there is no as such angle involved. We'll discuss कि उसका कैसे find करते हैं. ठीक है? So let's start off with the area of a sector. Guys, try to say something. I might be able to hear you now. No, Five, I can't. हेलो हेलो
Yes, I can now. हेलो भाई। Oh, nice, nice, nice. कैसे हो भाई? अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। भाई मैं ठीक वापस हूँ, आ गए आप हो? कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। वापस आ गए या अभी नहीं, भी मैं जा रहे अभी हो? मैं अभी भी दुबई में हूँ। अच्छा, आई व्हेन एम स्टिल इन आर दुबई। यू कमिंग बैक? Sometime this month or next month, Sometime inshallah. this month, inshallah. It's up It's to up to decision right now. My decision right dad's now. My deciding. dad's deciding. ओके, ठीक है, अच्छा। अच्छा, एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। अब एरिया ऑफ सेक्टर के लिए अगेन द फॉर्मूला दैट वी यूज्ड टू यूज वाज x by 360 times pi r square. This formula cannot be used anymore. Why? Because 360 degrees is in degrees. We actually need all the values in radians. So what you do is आप 360 को replace कर दो 2 pi से times pi r square. Pi and pi will cancel out. You will end up getting 1 over 2 r square theta. X नहीं लिखना, ना लिखो, theta लिखना है, theta लिख लो. But this will be the new formula that you have to use. Radius is still represented by r. There is no change with that. Theta is still representing the angle. The only difference now and before is theta अब आपका किस में होना चाहिए? Radians में होना चाहिए. If the theta is not radians, तो आप बेसिकली जो भी कैलकुलेशन दोबारा करोगे इस क्वेश्चन से रिलेटेड, इस फॉर्मूला से रिलेटेड, वो आपकी गलत हो जाएगी। ठीक है, अच्छा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इट्स प्रॉब्ली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ ऑल, which is finding the area of a segment. If you remember, I designed this as a segment. Copy it. Achha. So this is our segment. If you notice, this is not entirely a sector, and it does contain थोड़ा सा section आपके पूरे sector का, but it is not the entire thing. So area of a sector is going to be possible by finding the area of sector and then subtracting the area of triangle from it. Okay? And sometimes it is very important. Why? Because there are many questions in your past papers जहां पर वो आपसे पूछेंगे कि leave your answer as in the form of r and uh, theta or something blah blah blah. ठीक है, तो आपको उन सारे केसेस में you need to understand कि आप वेरिएबल्स के साथ कैसे डील करते हो। अब in this particular case, let's say we are calling the given angle as theta and we are describing the radius as r. तो आपका एरिया ऑफ सेक्टर क्या बनेगा एज पर द न्यू फॉर्मूला? 1/2 r square थीटा, ठीक है, माइनस द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर आपको याद हो तो अभी मैंने दोबारा आपको बताया था कि क्या होता है। प्रोडक्ट ऑफ द एडजेसेंट साइड्स, प्रोडक्ट ऑफ द एडजेसेंट साइड्स एंड मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। ठीक है, तो इस केस में हमारी एडजेसेंट साइड्स हैं r and r. The angle between them is given as theta. इसको सिंप्लीफाई करें तो 1/2 r square theta minus 1/2 r square sin theta. You can take 1/2 r square common. Theta minus sin theta will be the final simplified form. Now, please remember again, if you want to use this formula in your questions, you can use it by all means. कोई भी मसला नहीं है. The only problem is this formula is only valid if the given shape is starting off with a center.
ठीक है. एंड as you will see in the many questions, वहां पर सेक्टर मेंशन नहीं होगा, सेक्टर विल बी गिवन. ठीक है. और उसके अंदर से ट्राइंगल भी माइनस हो रहा होगा सेंटर. तो उस केस में यू कांट यूज दिस. यू कैन स्टिल यूज द हेड फॉर्मूला ऑब्वियसली, which states area of a sector minus the triangle. You can still use this, but you cannot specifically use this if you want. This is just for your representation, that if they ask you to keep your values in the variable, this is how you move them around. ठीक है. और कुछ क्वेश्चंस हैं सर्कुलर मेजर के जिसके अंदर we will be able to use trigonometry as well. Trigonometry means A levels की trigonometry, the quadrants and everything. वो अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो for the time being we'll skip it, otherwise we'll continue, we'll try to do every question that we can. ठीक है. अच्छा, before you understand that and before you start solving questions of this chapter, पेंटागन का कोई फॉर्मूला नहीं होता है एरिया. ठीक है. हेक्सागन का कोई फॉर्मूला नहीं होता. अगेन पुरानी चीजें इफ यू डू नॉट नो और यू डू नॉट रिमेम्बर तो दोबारा मेंशन कर देते हैं. पेंटागन एंड हेक्सागन, these are the most commonly ones, but let's say octagon is probably another one जो आ सकती है. Pentagon is the one that has 5 sides. Hexagon is the one that has 7 sides. Octagon is the one that has 8 sides. Okay. First of all, this. Second, if they use the word regular, if they use the word regular with any of the shape, that would mean same side and same angle. अब इसको आपने यूज कैसे करना है. फॉर एग्जांपल मैं से आपके सामने जो है आई थिंक हेक्सागन बना लेते हैं, दैट वुड बी मच मोर कन्वीनियंट. तो ये हेक्सागन बन गई आपकी. दिस इज योर हेक्सागन एंड लेट्स से दिस इज अ रेगुलर हेक्सागन एज वेल. अगर आपके सामने रेगुलर हेक्सागन है और आपको वो कह दे कि आपने इसका एरिया निकालना, हाउ विल यू फाइंड द एरिया फॉर रेगुलर हेक्सागन. आपको कोई फॉर्मूला तो होता नहीं है. तो आप क्या करेंगे, यू विल डिवाइड योर हेक्सागन into 6 triangles and all those triangles will have the exact same area जो किसी भी एक ट्राइंगल का होगा. बट ऑब्वियसली दे हैव टू गिव यू सम साइड्स और वो देंगे. और सेकंड, इफ यू रिमेंबर मैंने आपको अभी बताया था कि इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, अगर एक भी एंगल 60 बन जाए तो आपका पूरा ट्राइंगल क्या बन जाता है, इक्विलैटरल बन जाता है. अब इसमें देखो आपकी जो साइड्स है दे आर ऑलरेडी द सेम क्योंकि वो रेगुलर हेक्सागन, और आपका एक एंगल 60 भी बन गया. सो दैट वुड मीन बाकी दोनों एंगल भी क्या है, 60. So if they give you any one value of the side, let's say they've given you this as 8, the other sides of the triangle will also become exactly the same. Again, this is not an information given by the examiner. This is information concluded by us. ठीक है. On the basis of the knowledge that we already have कि भाई आपका एक एंगल भी अगर 60 हो और आप आइसोसेलेस ट्राइंगल में हो, your entire triangle will become an equilateral triangle. अब एरिया देखो फाइंड करना कितना इजी है. किसी भी एक ट्राइंगल का एरिया निकाल लेते हैं. ट्राइंगल के एरिया यहाँ पर राइट एंगल टू ट्राइंगल है नहीं, which means you will be using 1/2 AB sin थीटा. इसमें आपकी एडजेसेंट साइड्स कौन सी बनती हैं, कोई सी भी दो को कंसिडर करो. लेट्स से वी आर गोइंग टू कंसिडर these two as our adjacent sides. तो दोनों adjacent sides are 8 and 8. What is the angle between them? Sin 60. अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, दिस विल एंड अप बिकमिंग अंडर रूट 3 by 4 to 16. 16 under root 3. This will be the answer. एक ट्राइंगल का. ठीक है. तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा, 6 triangles in total multiply by 16 under root 3, which will end up becoming 96 under root 3. If you want, obviously you can write this in decimal, but I'm just keeping it in third. So 96 over 96 and under root 3 will be the total area of this hexagon. Again, आपको formulas नहीं पता, but this is how you find it.
अब यहाँ पर पेंटागन हो, ऑक्टागन हो, डज नॉट मैटर, योर वर्किंग विल नॉट चेंज, द ओनली थिंग दैट इज गोइंग टू चेंज इज आपका एंगल एट द सेंटर जो है, ठीक है। लाइबा, यहां पर हमने सेंटर में एंगल जो है वो 60 क्यों कंसिडर किया? व्हाई द एंगल एट द सेंटर इज 60? भाई सर आप भी बता सकते हैं। इक्वलाटरल ट्रायंगल, सीरियसली सर लाइबा, इक्वलाटरल ट्रायंगल नहीं सर। नहीं 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 लाइबा, इक्विलेटरल थे तो नहीं, इक्विलेटरल हमने बाद में बनाए हैं, हमने तो 60 की बेसिस पे इक्विलेटरल बनाए हैं। सो व्हाई डिड वी कंसिडर 60 इन द फर्स्ट If प्लेस? the center is If the 360, we center is divided by 360, we 6. divided by Um, 6. आपके पास टोटल 6 one ट्राइंगल part would बने be हुए हैं। 6. One part would be वेरी 6. गुड, 5। तो आपके पास टोटल एंगल कितना होता है एट द सेंटर? 360। तो 360 को डिवाइड बाय 6 करोगे, दैट एंड्स अप बिकमिंग 60 डिग्रीज, इसलिए हमने यहाँ पर 60 किया। इन अदर इंस्टेंसेस ऑक्टागन के अंदर आपके पास 8 ट्राइंगल्स बनेंगे, तो उस केस में आप 360 डिवाइडेड बाय 8 करोगे, और आपके पास पेंटागन में 5 बनेंगे तो आप 360 डिवाइड बाय 5 करोगे। दैट मींस अपार्ट फ्रॉम हेक्सागन देयर इज नो अदर केस जहां पर सेंटर में 60 बनेगा। अगर सेंटर में 60 नहीं बनेगा, दैट मींस उनमें से कोई भी ट्राइंगल इक्विलेटरल में कन्वर्ट नहीं होगा अनलेस दे गिव यू द इंफॉर्मेशन। ऑनलाइन में सारे हैं, सिर्फ फरजीन नहीं आए, फरजीन और मूसा नहीं आए, ठीक है। कर दी हुई है मेरे पे, आई थिंक, चेक कर लें एक दफा नीचे से, क्लास के बाद, क्लास के बाद, क्लास के बाद स्क्रीनशॉट भेज दो, क्लास के बाद, क्लास के बाद, अभी नहीं मेरी क्लास के बाद। अच्छा, तो आपके हेक्सागन के अलावा कोई भी और शेप ऐसी नहीं है जिसमें आप उसको इक्विलेटरल में इवेंचुअली कन्वर्ट कर सको, ठीक है। हेक्सागन इज द ओनली पॉसिबल ऑप्शन, इसीलिए एग्जामिनर हेक्सागन की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड होता है, जस्ट टू सी के बच्चों को पता है कि नहीं पता, ठीक है। सेकंड, लेट्स से देयर इज अ सर्कल ड्राप, और इसके अराउंड जो है ना देयर इज अ रोप रैप्ड अराउंड, इस सर्कल के सराउंडिंग में जो है उन्होंने, लेट्स से देयर इज अ रोप, और उन्होंने वो रोप जो है यहां पर कर दी है, एंड सम यू आर इन दिस सिमिलर सिचुएशन, कुछ इस तरह के, ठीक है। सो प्लीज रिमेंबर द रोप at the point where it actually touches the circle or it reaches out of the circle, वहां पर दोनों जगह पर it will be making an angle of 90 degrees, ठीक है। why would it be making an angle of 90 degrees? Because the rope is going to be tangent with the circle at all those points, और आपका रेडियस और टेंजेंट का एंगल हमेशा 90 डिग्री बनता है। सो दिस इज अनदर इंफॉर्मेशन दैट यू नीड टू नो। तो काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो आपने जिंदगी में पढ़ी होंगी, और सर्कुलर मेजर में वो सारी बिट्स बाय बिट्स यूज हो रही होंगी, बट दीज आर द मोस्ट कॉमन वंस, कि आपकी रोप जो है जब भी सर्कल के अराउंड आप रैप करते हो और मल्टीपल सर्कल्स के अराउंड आप रैप करते हो, तो आपकी हमेशा जो रोप है दैट इज ऑलवेज टेंजेंट विद द सर्कल, जहां से वो रैप होना शुरू होती है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लेट्स से हमारे पास आगे जो है ना वो एक और सर्कल दिया हुआ है, यहाँ पर भी हमारे पास एक और सर्कल है, यानी पागल हो गया आज, फाइज के आने की खुशी में लैपटॉप वो पागल हो गया। अच्छा, यहाँ पर भी एक और सर्कल है, यहाँ पर भी एक और सर्कल है, द रोप इज गोइंग टू बी टेंजेंट विद ऑल दीज सर्कल्स, ठीक है। अगेन ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो मैं कह रहा हूँ कि आपको याद करके जानी है, बट दिस इज ऑल कॉमन सेंस जो उन्होंने आपसे यूज करवाई हुई है। सो दिस इज अगेन समथिंग इफ यू ऑलरेडी नो तो बेहतर हो जाएगा। अब क्वेश्चन देखते हैं। Guys, by the way, we have done like few chapters before, and the recordings for those chapters are available. So, will you Okay, be watching perfect. those I will recordings? go over them. Yeah. अच्छा, सबसे पहले यही देख लेते हैं। By the way, any questions so far? Guys, any question? Laiba? No, sir. No, sir. No sir, no sir. Mohit भाई, कोई क्वेश्चन? अच्छा, अब ये देखो, उसने कहा है कि आपने शेडेड रीजन, आई थिंक ये शेडेड है, ठीक है। अब पेरीमीटर की क्या डेफिनेशन बताई थी शेडेड रीजन के? कि पेरीमीटर मींस सम ऑफ ऑल साइड्स,
ठीक है, और आपका शेडेड रीजन मैंने शेड कर दिया है, विच मींस यू विल हैव टू फाइंड द वैल्यू फॉर दिस, जो आपको ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में 6 है। ठीक है, आपको डी बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी विच इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, उसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, वो देख लेंगे कि क्या है। अब और आपको ये डी टू सी की वैल्यू भी चाहिए होगी विच वुड बी दी आर्क लेंथ। ठीक है, कर्व हमेशा आर्क लेंथ होती है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इफ यू रीड द क्वेश्चन केयरफुली, वो कह रहा है कि सी टू डी इज पार्ट ऑफ द सर्कल विद सेंटर ए। अब प्लीज ये मिसकंसेप्शन अपने दिमाग से निकाल दें कि सी डी इज कनेक्टेड टू डू बी, इसलिए बी आपका सेंटर होगा। दैट इज नॉट द केस। अगर आप क्वेश्चन पढ़ो, उन्होंने कहा हुआ है कि आपका सेंटर जो है वो ए होगा, विच मीन्स दिस एंटायर साइड सी ए और द एंटायर साइड ए डी, ये दोनों एज एज अ रेडियस एक्ट करेंगे। ठीक है, और अगर आपको देखो ना तो आपको ए डी की वैल्यू पता है और ना ही आपको ए सी की वैल्यू पता है। ठीक है, however they are saying कि ABD is a straight line, ये आपको पता है। Now A part is suggesting कि find the perimeter of the shaded region। अब perimeter निकालने के लिए if you remember हमने कहा था कि sum of all sides, हमें सिर्फ एक साइड की वैल्यू पता है which is B to C, we do not know the value for the arc length, हमें B to D की वैल्यू भी नहीं पता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड रेडियस ताकि हम आर्क लेंथ निकाल सकें। अब रेडियस निकालने के लिए, रेडियस इज इनक्लोज्ड इन अ ट्राइंगल, अगर आप ये वाला ट्राइंगल कंसिडर करते हो, इसके अलावा रेडियस किसी और ट्राइंगल से निकल ही नहीं सकता। अब इसमें कैसे भी निकलेगा, इफ यू रिमेंबर, तो हमने कहा था कि इफ यू कैन मेक वन पॉसिबल पेयर, तो कौन सा रूल यूज करते हैं? कोसाइन रूल। इफ यू कैन मेक ओनली वन पेयर तो कोसाइन रूल यूज करते हैं, अगर दो पेयर बन सके तो साइन रूल यूज करते हैं। ठीक है, अब इसके कोसाइन रूल में लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी एंड कॉस सी। अगेन मैंने आपको पहले बताया था कि द फर्स्ट सी एंड द लास्ट सी आर दी ऑपोजिट वैल्यूज। ठीक है, तो सबसे पहले आपकी साइड की वैल्यू आएगी विच इज आर, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी वांट टू फाइंड। ए की वैल्यू इज 6 स्क्वायर, बी की वैल्यू इज ऑल्सो 6 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 6। कैलकुलेटर है तो जल्दी से करते हैं, राइट साइड पूरी को कैलकुलेटर में डाल दें एंड देन टेक स्क्वायर रूट और मुझे आंसर बता दें कि क्या आ रहा है। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू कन्वर्ट योर कैलकुलेटर इनटू रेडियंस। डिग्रीज के साथ कैलकुलेटर यूज नहीं करना, डिग्रीज के साथ कर रहे थे। शिफ्ट मॉड सेटअप बताओ, शिफ्ट मॉड सेटअप दबाएं, उसमें 9.4 सारा कुछ कर लिया आपने दादा, स्क्वायर रूट भी कर दिया, लाइव स्क्वायर रूट भी कर दिया। yes sir yes sir ओके, तो आपके रेडियस की वैल्यू जो है वो आ गई आपके पास 9.4। ठीक है, तो आपने पूरी चीज एज इट इज कैलकुलेटर में डाली, वीडियो कैलकुलेटर बीइंग इन रेडियंस, और उसके बाद स्क्वायर रूट कर दिया। तो आपके पास अब आर्क लेंथ की वैल्यू निकाल लेते हैं। आर्क लेंथ, आर्क लेंथ निकला मोहित है, दिखाओ। रेडियस इज 9.4। अब नाउ देयर इज अनदर प्रॉब्लम, आपको आर्क लेंथ निकालने के लिए जो एंगल चाहिए होता है ये वाला, ये आपके क्वेश्चन में गिवन नहीं है। ठीक है, क्योंकि एंगल आपको हमेशा सेंटर पे चाहिए होता है, तो सेंटर वाला एंगल गिवन नहीं है। तो अब्दुल्ला ये सेंटर वाला एंगल कैसे निकालेंगे, एक्स वाला एंगल? G5 कैसे निकालेंगे? Not very sure, sir. Not very sure, sir. ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, दोनों साइड्स जो हैं वो आपकी 6 और 6 हैं। ठीक है, और एक एंगल आपको ऑलरेडी गिवन है, विच मींस नीचे वाले दोनों एंगल सेम होंगे। एंगल्स का टोटल सम क्या होता है? एंगल्स का टोटल सम क्या होता है ट्राइंगल में? 180, right? 180। Oh, बट 180, अब right? हम 180 यूज नहीं कर सकते, हमें Hmm. रेडियंस में यूज करना है, Hmm. विच वुड बी This pi, 1 pi. यस, This pi, विच वुड 1 बी pi. पाई। तो x प्लस 1.8 इज इक्वल टू पाई, 2x इज इक्वल टू पाई माइनस 1.8, और जो अभी आंसर आएगा उसको डिवाइडेड बाय 2 कर दो। क्या आंसर आ रहा है मोहित?
इसके लिए कैलकुलेटर को रेडियंस बनने की जरूरत नहीं है क्योंकि एंगल इन्वॉल्व नहीं है। तो पाई सिंपल वैल्यू यूज करो, 1.8 सब्ट्रैक्ट करो एंड देन डिवाइड बाय 3 पॉइंट, एग्जैक्ट वैल्यू है 0.7। क्यों? राउंड ऑफ थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स पे करने हैं 0.7 के। 0.670, ओके। तो आपके पास एंगल जो है वो 0.670 आ गया। अब आप आर्क लेंथ निकाल सकते हो बाय यूजिंग द एंगल ऑफ 0.670 एंड द रेडियस ऑफ 9.4। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आर्क लेंथ क्या आ रही है? 6.298. 0.298. 6.298, 298। Yes. बट ऑब्वियसली Yes. ये हम एंड पे जो है इसको दोबारा राउंड ऑफ कर लेंगे इफ नीड बी, बट अभी के लिए हम इसको फोर्थ सिग्निफिकेंट फिगर्स में ही रखते हैं। लास्ट आंसर इज सपोज टू बी 3। अच्छा, तो हमारी एक मुश्किल दूर होगी। नाउ वी नो द वैल्यू फॉर डी सी जो हमें चाहिए थी। ठीक है, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन के लिए वी वर सपोज टू नो द वैल्यू फॉर बी टू सी, जो कि ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन है 6। मोहित, ये डी बी की वैल्यू कहां से निकलेगी? डी बी की वैल्यू कहां से निकलेगी? क्या करेंगे? जी बोला, डी बी की वैल्यू कहां से निकलेगी? भाई ये पूरा रेडियस है और ये भी पूरा रेडियस है। रेडियस की क्या वैल्यू निकाली है? 9.4। 9.4 माइनस 6, 3.4। ठीक है, तो आपके पास टोटल पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 6.298 प्लस 6 प्लस 3.4, which will end up becoming 12, 12, 15.698। बट आपका फाइनल आंसर जो है वो थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स में होना चाहिए, तो 15.7। ठीक है, अब बी पार्ट में देखो, वो कह रहे हैं कि एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। अब प्लीज, ये जो शेडेड रीजन है ये सेगमेंट बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ये सेगमेंट बिल्कुल नहीं है, बट यू विल स्टिल यूज द सेम लॉजिक जो आपने पहले हमने एस्टैब्लिश की है कि आप शेडेड रीजन कैसे फाइंड करोगे? पूरा एरिया विच इज द एरिया ऑफ अ सेक्टर माइनस द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, तो आपके पास यहां पर एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर 1/2 आर स्क्वायर थीटा। मोहित, आर स्क्वायर थीटा में कौन सा एंगल यूज करें, 1.8 या 0.67? जी अब्दुल्ला, ठीक है हैं? फिर सही कह रहे, गलत कह रहे? आप एंगल यूज करते हो जो सेंटर के साथ बन रहा हो। 1.8 सेंटर नहीं है, 0.67 सेंटर है। उसने क्वेश्चन में कहा है कि ए सेंटर है आपका। ए के साथ जो एंगल बन रहा है दैट इज द वन यू आर गोइंग टू यूज। तो 1/2 आर स्क्वायर थीटा रेडियस की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, विच इज 9.4 होल स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 0.670। ये हमारे पास एरिया ऑफ अ सेक्टर आ गया। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल माइनस करने के लिए अगेन ये, अब आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है इट्स नॉट अ राइट एंगल ट्राइंगल, तो आपको दूसरा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। दी अदर फॉर्मूला इज एरिया ऑफ ट्राइंगल विच इज 1/2 ए बी साइन थीटा। मोहित भाई, इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है ए बी के लिए, विच वन इज ए विच वन इज बी, और एंगल कौन सा यूज करेंगे?
यार पूछो ना फिर। आपका एरिया ऑफ अ ट्राइंगल जो है वो ये है कि आपने दो एडजेसेंट साइड्स लेनी है और दरमियान वाला एंगल लेना है। ठीक है। साइड्स आपकी ए और बी की वैल्यू होंगी और एंगल आपका सी की वैल्यू होगा। इसको गौर से देख लो, मैं नीचे लेके जाऊंगा जिससे कि बस अकॉर्डिंगली वैल्यूज बतानी है। देख लिया? भेजो नीचे। ओके जी, अब इसके अकॉर्डिंगली मुझे बता दें कि यहाँ पर मैं किसको ए कंसिडर करूं, किसको बी कंसिडर करूं और किसको सी कंसिडर करूं। ग्रीन जगह का एरिया निकालना है। जी बताइए जल्दी से दुलावे। ए क्या होगा, बी क्या, ए क्या होगा, बी क्या होगा और सी क्या होगा? ज्यादा ही हो दोनों। भाई हर दफा वी बना लो। तो आपकी साइड जो है दे आर टर्निंग आउट टू बी 6 and 6 और एंगल आपका 1.8 है। ठीक है। तो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज 1/2, 6 6 एंड साइन 1.8। इन दोनों वैल्यूज को आप माइनस कर दें, आपके पास एरिया ऑफ द शेडेड रीजन आ जाएगा। लाइबा क्या आंसर है? 4 पॉइंट। Guys, have you done it? Is it 12.07? I'm putting into my calculator. I'm putting into my calculator. लाइबा आपने कर लिया बेटा? मोहित क्या चीज नहीं समझ लगी ये बताओ। क्या? आज आज फ्राइडे वाला टेस्ट कैसे हुआ था? कर लेंगे। और तुम्हारा कैसा हुआ? ये कौन से वाला ये है? कैसा हुआ? ठीक? जी बता दो मुझे, इज इट 12.07? Yes. अच्छा Yes. ठीक है। आज के लिए इतना ही है। टुमारो वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस दिस अगेन और फिर वेडनेसडे को विल स्टार्ट अ न्यू टॉपिक। अच्छा बाय द वे वेडनेसडे को आई थिंक आ रही है कि नोटिफिकेशन आया, इट्स प्रॉब्ली गोना बी ऑफ बट एकेडमी विल बी ऑनलाइन ऑन वेडनेसडे एंड थर्सडे। वो दोनों दिन ऑनलाइन होगी एकेडमी। तो Okay, perfect. बस Okay, ठीक है, perfect. ओके सर बाय बाय जब तक एवरीवन। मैं दुबई में